अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टेक क्लास ऑफ फिजिक्स ए लेवल्स। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि वी हैव ऑल न्यू सेटअप फॉर यू, वी हैव सम न्यू माइक्स। ठीक है, आपके एग्जाम्स भी करीब आते जा रहे हैं, हम भी प्रिपेयर्ड है आपको हेल्प करने के लिए, और आप भी गेयर अप कर लें बिकॉज अब टाइम बहुत कम रह गया, राइट? सो in this session we will do a past paper, rather this is the latest past paper of May-June 2024, paper 4-2. so basically आप similar paper में पेयर हो रहे होंगे May-June 2005 paper 4-2, right? so लॉन्ग पेपर, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज भी इस पेपर की होती है। इनफैक्ट दिस पेपर हैज़ परसेंटेज ऑफ 38.5% ऑफ योर ए लेवल्स। ठीक है, द टाइम फॉर दिस पेपर इज 2 hours। ठीक है, एंड द टोटल मार्क्स आर 100। जनरली इसमें 11 to 12 आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपकी ग्रिप बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, आपको डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, आपके पास मार्जिन ऑफ एरर और मार्जिन ऑफ टाइम नहीं होता। ठीक है, जैसा जैसा हम इस पेपर में प्रोग्रेस करेंगे इंशाल्लाह यू विल गेट टू नो हाउ टू अटेम्प्ट दिस पेपर। सो ऑन द फर्स्ट पेज यू हैव सम लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स जो यहाँ पर यूज होंगे, एंड देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव सम फॉर्मूलाज, राइट? So let's straight away jump on to the question number 1, and he's asking you to define radian. So radian को देखते ही हमें पता चल गया कि this question is related to circular motion, right? So what is radian? Radian तो एक एंगल होता है जो कि एक आर्क फॉर्म करती है at the center of circle. So you will write radian is an angle formed by an arc at the center of a circle, right? So you know कि रेडियन को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट भी कहते हो, ठीक है, और बेसिकली इट्स एन एंगल। ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट यू हैव अ सर्कुलर मेटल डिस्क स्पिन्स हॉरिजॉन्टली। डिस्क जो है वो हॉरिजॉन्टली स्पिन कर रही है, और आपको इस डायग्राम में उस डिस्क का टॉप व्यू नजर आ रहा है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, as shown in figure 1.1, a piece of modeling clay is attached to the disk for the instant when the piece of the modeling clay is at the position drawn on figure 1.1. So आप देखेंगे modeling clay कहाँ पर present है, बिल्कुल edge पर present नहीं है, it is present 1.2 centimeters from the edge। ठीक है, so इस वक्त जिस radius में ये rotate कर रही है, let's find out its radius. That radius is equal to 9.3 minus 1.2, which is 8.1 centimeters, right? So in first part he's saying draw an arrow labeled V showing the direction of velocity of the modeling clay. So बच्चों जो भी ये सर्कल ट्रेस कर रही है इस वक्त इसकी वेलोसिटी इस करंट पोजीशन के साथ टेंजेंशियल होगी, राइट? सो वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट। ठीक है, सो इसकी पाथ के हिसाब से टेंजेंशियल डायरेक्शन विल बी दिस। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, वी विल लेबल दिस with capital V, right? The next part you have to find out the direction of acceleration, and you have to label that arrow capital A. So you know that centripetal acceleration and centripetal force both point towards the center of circle, right? So here you have the direction of centripetal acceleration. This always point towards the center of circle, and you have to label this arrow A, right? सो यू मस्ट नो कि जो वेलोसिटी होती है और जो एक्सेलरेशन होती है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट एंगल इज ऑलवेज 90 degrees. In the next part he is saying you that a disk in figure 1.1 has radius of 9.3. The center of gravity of the modeling clay is 1.2 centimeters from the rim of the disk and moves with speed of 0.68 meters per second. Calculate the angular speed. So the information that you have is its radius. Its radius is equal to 9.3 minus 1.1, which is equal to 8.2 centimeters, right? And you have value of linear velocity, which is 0.68 meters per second, right? Okay,
ये आपके पास जो रेडियस है, दिस इज नॉट इन SI यूनिट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इन SI यूनिट विच इज meters. Which formula you will use here? You will use the formula of linear velocity equals r omega. Linear velocity v equals radius times angular velocity. Let's substitute the values. Value of velocity is 0.68. Okay, 8.2 is in centimeters. You have to convert it in meters by dividing this value by 100 times omega, which is w. Solve it for the value of omega. याद रहे कि इस पेपर के लिए मेरे पास एज सच कोई मटेरियल नहीं है, मैंने प्री रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूँ. एंड आई एम होपिंग कि आप भी मेरे साथ इसको सॉल्व करेंगे. 0.68 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8.2. योर आंसर इज 8.29. Try to answer all the answers in 3 significant figures. So 8.29 radians per second. Answer is 8.29 radians per second. Let's move on to the next part. शुरू वाले parts आपको पता है generally आसान ही होते हैं. Calculate the acceleration. Once you have the value of its radius and the value of omega, so you know that there are two formulas of acceleration. One formula is acceleration is equal to v square divided by r. आप ये वाला formula भी use कर सकते हैं. And the other formula is r omega square. ये दोनों formulas usable है, right? हम फर्स्ट फॉर्मूला से कर सकते हैं बिकॉज यू हैव द वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड विच इज गिवन इन द स्टेटमेंट. सो आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. ओके, द वैल्यू ऑफ लीनियर स्पीड एज गिवन हेयर विच इज 0.68, राइट, एंड रेडियस इज 8.2 centimeters. So 0.68 square divided by 8.2 divided by 100 to convert centimeters to meters. Let's find out this value. So 0.68 square divided by 8.2 divided by 100. Answer is 5.64. Its centripetal acceleration is 5.64 meters per second square. Right? Let's come to the next part. A second piece of modeling clay is attached to the disc in position. जी बच्चों, ये second piece आ गया which has comparatively much lesser radius. ठीक है, जो आपका previous piece था उसका radius comparatively ज़्यादा था. ठीक है, अब ये जो न्यू पीस है इसका सेंटर से डिस्टेंस कम है, इसका रेडियस इज कंपैरेटिवली लेसर. ये यहाँ पर देख सकते हैं इसके सेंटर ऑफ मास से वाला डिस्टेंस जो है दिस इज मच स्मॉलर. याद रहे कि एक टर्निंग सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है. सो फॉर बोथ ऑफ द मासेस ओमेगा इज कांस्टेंट. लीनियर वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली द वन व्हिच हैज ग्रेटर रेडियस. ओके, The second piece of modeling clay has larger mass than the first piece. नजर भी आ रहा है क्योंकि वो साइज में थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ किया हुआ है. By placing one tick in each row, complete table 1.1 to show how the quantity is indicated compared to the two pieces of modeling clay. जी बच्चों, angular speed less for the second piece, same for both the pieces, ग्रेटर फॉर द सेकेंड पीस. मैंने अभी आपको बताया कि एक टर्निंग सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है. सो दिस विल बी सेम फॉर बोथ द पेजेस. लीनियर स्पीड का भी बताया, v इक्वल्स आर ओमेगा, राइट. सो ओमेगा तो सेम है, लीनियर स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. सो जो फर्स्ट पीस था उसका रेडियस ज्यादा है, फॉर दैट पीस लीनियर स्पीड विल बी ग्रेटर. सो लेस फॉर द सेकेंड पीस. And now the next formula is for the acceleration, and acceleration is equal to r omega square. ठीक है, इस पूरे टर्निंग सिस्टम का ओमेगा कांस्टेंट है. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस. वंस अगेन सेकेंड पीस का रेडियस कम है, सेकेंड पीस की एक्सेलरेशन भी कम होगी. सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज लेस फॉर द सेकेंड पीस दैन द फर्स्ट पीस. And here you score 3 marks, and this question was built well around a horizontal circle and 10 marks आपके score हो गए.
आपको बच्चों पेपर 4 में एक एक मार्क अर्न करना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखनी है कॉन्सेप्ट्स पे। फॉर दैट यू कैन टेक अ ऑनलाइन सेशन, आप हमारे साथ आकर एकेडमी में पढ़ सकते हैं। पढ़ें ज़रूर, पढ़ें ज़रूर। अगर आप एफर्ट पुट इन करेंगे इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अबाउट, आई गेस सो इट्स रिलेटेड टू इंटरनल एनर्जी और आइडियल गैसेस वगैरह का सीन लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू मस्ट हैव योर कैलकुलेटर्स, आप पॉज करके पहले खुद सॉल्व किया करें, फिर मेरा सोल्यूशन देखा करें, राइट। सो विद रेफरेंस टू थर्मल एनर्जी स्टेट व्हाट इज मेंट बाय टू ऑब्जेक्ट्स बीइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जी बच्चों, लेट्स सपोज यू हैव एक हॉटर ऑब्जेक्ट और एक कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब दे विल बी इन कॉन्टैक्ट, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द कोल्डर ऑब्जेक्ट। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम पे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती बिकॉज बोथ ऑब्जेक्ट्स हैव सेम टेम्परेचर, राइट। सो विद रेफरेंस टू थर्मल एनर्जी, तो आप थर्मल एनर्जी के रेफरेंस में बताएं कि बोथ हैव सेम थर्मल एनर्जी या बोथ ऑब्जेक्ट्स आर एट सेम एनर्जी या सेम टेम्परेचर, राइट। ओके, two objects have two objects are at same temperature, two objects are at same temperature and there is no net transfer of which energy, थर्मल एनर्जी, क्योंकि हमें आंसर देना है इन रेफरेंस टू थर्मल एनर्जी, तो हम इस टर्म को जरूर अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे। देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट। Let's straight away move on to the next part. Two cylinders X and Y each contain sample of ideal gas. बच्चों जहां पर उसने word use कर दिया ideal gas, you have to use the equations of ideal gas. And you know what are the equations of ideal gas? PV equals nRT, PV equals nKT, और वो सारी equations यहाँ पर applicable हो जाएंगी. X has volume of 0.26 meter cube and contains 0.740 mole of gas at pressure of 1.2 into 10 raised power 5 pascals. Y has volume of 0.043 meter cube, contains gas, ये नहीं बताया कितनी गैस है, at pressure of 2.9 times 10 raised power 5 pascals. Data for the two cylinders are shown in figure 2.1. Show that temperature of gas X is 234 डिग्री सेल्सियस। याद रहे कि जो उसने टेम्परेचर पूछा है वो सेल्सियस में है। सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन्स, राइट। सो पहले आपके पास केल्विन्स में आंसर आएगा एंड वी विल कन्वर्ट दैट टेम्परेचर बैक टू सेल्सियस। फॉर दैट वी नीड 1 एक्स्ट्रा मार्क, तो ये पार्ट 3 मार्क्स का है, तो 2 पार्ट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप टेम्परेचर केल्विन में ठीक फाइंड कर पाओ। उसके बाद आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देना सेल्सियस, राइट। You have number of moles, you have pressure, you have volume. So, बहुत basic question है, right? You just have to find the value of temperature. For that, you can simply apply the equation PV equals nRT, right? Pressure is 1.2 times 10 raised power 5. Volume is 0.0260. Number of moles are 0.74. Molar gas constant is 8.31. And let's find out the temperature in Kelvin, right? Okay. 1.2 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by 0.026 divided by 0.74 times 8.31. The value I am getting on my calculator is 507.4. So temperature is equal to 507.4 Kelvins, but we have to convert it in Celsius. For that, आप लिखेंगे temperature in degree Celsius is equal to 507.4 minus 273.15. ठीक है, why 15? Because your syllabus says कि आपने 15 लिखना है। गूगल पर भी अगर आप टेम्परेचर चेंज करें उसमें भी आपको 15 नजर आएगा, राइट। सो 507.4 minus 273.15. The answer on my calculator is 234.21, right? So I can write it as 2
34 डिग्री सेल्सियस मैंने शो कर दिया है, ठीक है। सो एक स्टेप एक्स्ट्रा था, टेम्परेचर पहले आपके पास केल्विन में आएगा, देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन सेल्सियस। द नेक्स्ट पार्ट, डिटरमिन द नंबर ऑफ molecules of gas and why, explain your reasoning, ठीक है। explain your reasoning, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? आपके पास प्रेशर की इंफॉर्मेशन है, आपके पास वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन है, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या आपके पास टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन है? लेट्स गो थ्रू द स्टेटमेंट वंस अगेन। Two cylinders X and Y each have sample of ideal gas. The samples are in thermal equilibrium. अगर दोनों सैंपल्स थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, the samples are in thermal equilibrium, it means that both have same temperature. अब मैं यहाँ पे आपको एक बात समझाऊंगा। आपके पास जो क्वेश्चन पूछा है ना, that is related to thermal equilibrium, जो डेफिनेशन होती है वो आगे कहीं ना कहीं यूज हो रही होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने रेजोनेंस की डेफिनेशन पूछी है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आगे जाके कहीं ना कहीं रेजोनेंस का क्वेश्चन जरूर होगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो इनडायरेक्टली इसका ये मतलब है कि अगर दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, जो एक्स का टेम्परेचर है वही वाई का भी टेम्परेचर है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि हमें वाई का टेम्परेचर नहीं पता, इनडायरेक्टली हमें पता है कि जो टेम्परेचर गैस X का है एग्जैक्टली वही टेम्परेचर गैस Y का, एंड दैट टेम्परेचर इज 507.4 केल्विन्स, राइट। Determine the number of molecules. In this case, you have to find the total number of molecules, the total number of particles, not the number of moles, right? So आप क्या करेंगे? You will write PV equals capital N small k T. The other way was कि आप पहले number of moles find out कर लो PV equals nRT से, और उसके बाद उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्टली करेंगे, आपके पास डायरेक्टली कैपिटल N आएगा विच इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो व्हाट इज दिस K? K is Boltzmann constant. It is 1.38 into 10 raised to power minus 23, right? So for gas Y, the value of pressure is 2.9 into 10 raised to power 5. Volume is 0.043. Number of particles आपने find करने हैं. Molar gas constant is 1.38 times 10 raised to power minus 23. And temperature is same, which is 507.4 kelvins, right? So the only variable here is N. Let's find number of particles using the calculator. So this will be 2.9 multiplied by 10 raised to power 5 multiplied by 0.043 divided by 1.38 into 10 raised to power minus 23 multiplied by 507.4. The value is, number of particles are coming out to be 1.78 into 10 raised to power 24. So I will write 1.78 into 10 raised to power 24. 23 नहीं है, इसको 24 कर लें। और याद रहे कि नंबर ऑफ पार्टिकल एज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, आप इसके साथ पार्टिकल्स या एटम्स नहीं लिखेंगे। Let's do the next part. A gas in X consists of molecules that each have mass that is 4 times the mass of molecules of Y. तो बच्चों यहाँ पर X का और Y का कंपैरिजन करो। वो कह रहा है कि जो गैस X के पार्टिकल्स हैं दे आर मच हैवियर। कितने टाइम्स हैवियर हैं? अगर Y का मास M है, सो वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है गैस X consists of molecules that each have mass that is 4 times the mass of molecules of Y. तो इसका mass है 4m. याद रहे कि they both are at same temperature, तो इनकी kinetic energy same होगी. According to this formula, mean kinetic energy of single molecule of ideal gas is equal to 3/2 kT. बच्चों आपको इतना तो विजिलेंट रहना है, इतना तो आपको टेंटिव रहना है कि आपको खुद से पता चल जाए कि अगर दोनों गैसेस थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, दे हैव सेम टेम्परेचर, और अगर टेम्परेचर सेम है तो इनकी मीन काइनेटिक एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। अच्छा,
The other formula of kinetic energy is half m times CRMS square. ठीक है, हाँ, अब यहां से पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है. जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर करके भी दिखा देता हूं. मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर द पार्टिकल्स ऑफ एक्स आर 1/2 multiply by 4m multiply by CRMS of particles x square. दूसरे की काइनेटिक एनर्जी सेम है. दिस इज 1/2. इसका मास कितना है? इसका मास है 4 नहीं, इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी है CRMS ऑफ y स्क्वायर. आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो डिवीजन से क्या होगा? डिवीजन से ये होगा बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएगी. हाफ से कैंसिल, m से कैंसिल. तो यहां से आपके पास ये आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ y का स्क्वायर. आप दोनों साइड्स पर रूट लेंगे. ठीक है, यू विल गेट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ y, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस x. ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, जिनका मास कम है उनकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा होगी. तो आप यहां पर लिखेंगे बोथ सैंपल्स x and y each particle has same kinetic energy. According to which formula? According to formula, kinetic energy is equal to 3/2 kT, because kinetic energy is just proportional to thermodynamic temperature. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप आपके पास बच्चों रिलेशनशिप ये आ रहा है कि जो आपकी CRMS है या CRMS का स्क्वायर जो है वो मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो CRMS of molecules of gas Y is twice the root mean square velocity of molecules of gas X. ठीक हो गया बच्चों? सो बेसिकली आप ये सारी वर्किंग को भी यहाँ पर शो कर सकते हैं. ये सारी स्पेस में आप वर्किंग से भी शो कर सकते हैं. ये वर्किंग भी आपकी स्टेटमेंट को एनहांस कर रही है, सपोर्ट कर रही है. सो दिस वाज अ बिट टफ पार्ट. Let's move on to the next question, and this question is about internal energy. State what is meant by internal energy of a system. जी बच्चों, it is a sum of random kinetic energies and potential energies associated with all the molecules present in the system. So internal energy is sum of random का वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है. कुछ पार्टिकल्स की कम होती है, कुछ पार्टिकल्स की ज़्यादा होती है. सो यू विल राइट इट इज सम ऑफ रैंडम काइनेटिक एंड पोटेंशियल energies of all the molecules present in the system. और यहाँ पर हम थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, जिसको आप कंप्रेशन भी कहते हैं. अब अगर आपको प्रैक्टिस है कॉन्सेप्ट की, जो कि पास पेपर करने से पहले बहुत ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि समटाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी को जस्टिफाई करने के लिए आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेते हो, और समटाइम्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए आप
इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन की हेल्प लेती हो, विच इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज। अब मुझे लग रहा है कि क्योंकि इसने डेफिनेशन पूछी है इंटरनल एनर्जी की, तो आगे जस्टिफिकेशन भी इस डेफिनेशन की बेस पे करवाएगा। लेट्स सी। विद रेफरेंस टू मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, वही बात है ना, किससे रिलेट कर रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी से। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस व्हेन, नंबर वन, बड़े ध्यान से देखें, अ गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम सो दैट इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस। वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये है कि पार्टिकल्स की मीन सेपरेशन ना तो रिड्यूस हो रही है ना तो इंक्रीज हो रही है, बिकॉज दे कैन नॉट ऑक्यूपाई मोर स्पेस और लेस स्पेस बिकॉज वॉल्यूम फिक्स्ड है। ठीक है, तो अगर वॉल्यूम बच्चों फिक्स्ड है तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि आप गैस को हीट कर रहे हो ना, गैस इज हीटेड एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, राइट। सो जब गैस को हीट करोगे तो उसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले आप लिखें potential energy of molecules is constant because volume is not changing, because आप ये भी लिख सकते हो mean separation of molecules is, mean separation of molecules is constant, right। कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ? काइनेटिक एनर्जी। तो आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, आपने वर्ड्स में लिखना है, राइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स increase with temperature या increase with heat, increase with rise in temperature। तो कोई एक एनर्जी भी अगर इंक्रीज हो रही है तो आप लिखेंगे सो द इंटरनल एनर्जी विल, सो द इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप इसको 3 मार्क्स के लिए कैसे जस्टिफाई करेंगे? 1 मार्क के लिए आपने वर्डिक्ट दिया है पोटेंशियल एनर्जी का, 1 मार्क के लिए काइनेटिक एनर्जी का, और 1 मार्क के लिए आपने जस्टिफाई किया है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करेगी, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज अ वायर इज स्ट्रेच्ड विद इन इलास्टिक लिमिट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। आपने वायर को पकड़ के स्ट्रेच किया है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो कौन सी एनर्जी चेंज नहीं होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो यू विल राइट kinetic energy of molecules, kinetic energy of molecules will be constant, kinetic energy of molecules will be constant as there is no change in temperature, right। so जब हम वायर को स्ट्रेच करेंगे द मॉलिक्यूलर सेपरेशन विल इंक्रीज। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड्स वीक होंगे जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। ठीक है, तो आप लिखेंगे एज वायर इज स्ट्रेच्ड, wire is stretched, molecular separation will increase, molecular separation will increase, so potential energy between the molecules also increases, also increases। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कोई एक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल इंक्रीज, the internal energy of system will increase and your grade will also increase, yes। okay बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय फेवरेट टॉपिक। आपको अच्छा लगे ना लगे, भाई को पसंद है, राइट।
दिस टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। बच्चों आसान इस वजह से है बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी सिस्टमैटिक। अगर आप चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप से पढ़ें, मेरे नोट से पढ़ें, वीडियो से पढ़ें, ये चैप्टर इज देयर ऑन यूट्यूब, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ें, एट द एंड ऑफ द डे आप बस थोड़ी सी इक्वेशंस रह जाती है जिनको बड़े सीक्वेंशियल मैनर में आप याद कर लो, आपका क्वेश्चन हो जाता है, राइट। A block of mass m oscillates vertically on the spring as shown in figure 4.1। अच्छा मुझे एक और चीज़, जो क्वेश्चन होता है ना, फिगर का नाम भी वही होता है। और लेट सपोज एक क्वेश्चन नंबर 4 में 3 फिगर्स हैं तो उनका नाम होगा 4.1, 4.2, 4.3, राइट। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि वर्टिकली अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहा है, राइट। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। जी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करती है। इनफैक्ट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये तो हमें पता है। सो यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है और वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ वाई एंड एक्सेलरेशन इज इन टर्म्स ऑफ ए, राइट। Explain how figure 4.2 shows that oscillations of the block are simple harmonic। बच्चों ये कंडीशन देखें ना, acceleration is proportional to displacement with negative sign, ठीक है। तो आप लिखेंगे straight line, graph is a straight line, graph is a straight line, ठीक है। तो ये proportionality प्रूव हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन जीरो होगी तो डिस्प्लेसमेंट को भी जीरो होना चाहिए बिकॉज बोथ द क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप लोग लिखेंगे थ्रू ऑरिजिन, राइट, विथ कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट एंड हैज कांस्टेंट नेगेटिव ग्रेडियंट which meets the condition that is acceleration is proportional to negative of displacement. Okay, let's move on to the next part. Deduce the expression in terms of m, a and y, the angular frequency। अच्छा बच्चों आपको पता है ना कि ये जनरल इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होती है बच्चों y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी। इस पर्टिकुलर ग्राफ का y एक्सेप्ट नहीं होगा। Why? Because you can clearly see that this line is passing through origin, right? Always compare this equation with the general equation of straight line, which is acceleration is equal to minus omega square x. Now, you know that the quantity you have plotted along y-axis is acceleration, quantity along x-axis is displacement. So the gradient of the graph is clearly minus omega square. जब आपको ये जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का ग्राफ स्कूल में बताया जाता है तब आपको ये भी बताया जाता है कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर के, राइट। सो लेट्स कंसीडर दीज 2 पॉइंट्स। एक जनाब ये वाला पॉइंट ले लो विच इज -3y एंड +2a, और एक जनाब आप ये वाला पॉइंट ले लो विच इज ऑरिजिन। यहाँ से अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट करोगे तो आपका ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी 2a डिवाइडेड बाय -3y, ठीक है। गलती माफ, मैं गलती करूंगा कोई मसला नहीं है, आप गलती करोगे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, मैंने एग्जाम नहीं देना, ठीक है। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट अगर कोई मैथमेटिकल एरर होगा सो लेट इट गो, अगर होगा तो कमेंट्स में उसकी करेक्शन कर दीजिएगा। अच्छा, आपके पास ग्रेडियंट आ गया बच्चों y ओवर x से। ग्रेडियंट किसके इक्वल होगा? ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू 2a ओवर -3y। gradient is equal to -2a over 3y, ठीक है। सो ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। ग्रेडियंट किसके इक्वल है? -2a ओवर 3y इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। हमेशा माइनस साइन से कैंसल आउट हो जाएगा बिकॉज हमेशा ग्रेडियंट नेगेटिव होगा। फॉलिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, आपका ग्रेड फॉल करेगा, आपका ग्रेडियंट नेगेटिव होगा, आपका ग्रेड राइज करेगा, आपका ग्रेडियंट पॉजिटिव होगा। ओके, सो आप यहां से बच्चों ओमेगा को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लो। टू गेट रिड ऑफ द स्क्वायर यू हैव टू टेक अंडर रूट एट बोथ साइड्स।
After doing that, omega will come out to be under root 2a divided by 3y. 2a divided by 3y, right? The maximum velocity v naught, the formula of maximum velocity v naught is equal to omega x naught, right? ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, आ गई है, आ गई है. अब आपके पास x नॉट की वैल्यू कहां से आएगी? x नॉट की वैल्यू ग्राफ से आएगी. x नॉट मीन्स द एम्पलीट्यूड. तो आप जनाब ग्राफ पर आके देखें, आपका ग्राफ y की टर्म्स में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहां तक है 3y तक, राइट? सो x नॉट इज इक्वल टू 3y. ठीक है, सो यू विल राइट v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू है जनाब ओवर 3y मल्टीप्लाई बाय 3y. ठीक है, अब 2 मार्क्स का है ना, तो इसको सिंप्लीफाई भी करना ही पड़ेगा. आप जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप इसको जनाब ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2. मैं थोड़े देसी तरीके से इसको जस्टिफाई करूंगा ताकि आप सबको समझ आ जाए. अंडर रूट 3y मल्टीप्लाई बाय 3y को देखें मैं किस तरह से लिख रहा हूं, अंडर रूट 3y मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3y. ठीक है, ताकि इधर दोबारा से मल्टीप्लाई हो तो आपके पास दोबारा से 3y ही आ जाएगा, राइट? अच्छा, अब एक अंडर रूट 3y से कैंसल आउट हो जाएगा. दिस विल बी फर्दर सिंप्लीफाइड टू अंडर रूट ऑफ 6, क्योंकि बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 3 विल बी 6, अंडर रूट 6 ay. दिस मस्ट बी योर सिंप्लीफाइड आंसर. एंड बीइंग द स्टूडेंट ऑफ ए लेवल्स बच्चों, आपको इतनी सिंप्लीफिकेशन तो आनी चाहिए, इतनी तो मुझे भी आती है, राइट? सो यू विल राइट अंडर रूट ऑफ 6ay. द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन. बच्चों याद रखना, whenever he is asking energy it means total energy. अगर काइनेटिक एनर्जी होगी या पोटेंशियल एनर्जी होगी तो जस्टिफाइड उसके साथ लिखा होगा. एनर्जी का मतलब है टोटल एनर्जी. यू मस्ट नो द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर. लेकिन आपने किन टर्म्स में आंसर देना है बच्चों? आपने आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ m, a एंड y. इसके अलावा कोई वेरिएबल्स इंक्लूड नहीं करने, राइट? सो आप लिखेंगे जनाब 1/2 मैस m एज इट इज आ जाएगा. ओमेगा स्क्वायर. बच्चों ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास प्रीवियस पार्ट से ऑलरेडी आपके सामने है, विच इज 2a/3y, राइट? अब आपने इसका फर्दर स्क्वायर नहीं करना बिकॉज ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है. मल्टीप्लाइड बाय एक्स नॉट स्क्वायर. सॉरी, लास्ट पार्ट में आपको पता था जनाब कि आपके पास एम्पलीट्यूड क्या था? 3y. तो 3y का स्क्वायर. तो याद रखना, एक 3y डिनोमिनेटर में है और एक 3y न्यूमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा. सो यू आर लेफ्ट विथ, अच्छा एक और बात, एक 2 भी तो 2 से कैंसल आउट हो रहा है. न्यूमिनेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, तो 2 2 से कैंसल आउट हो जाएगा. यू आर लेफ्ट विथ m a मल्टीप्लाई बाय 3y. Simplified form in this answer is 3m_a_y without any specific sequence. Generally आप कोफिशिएंट्स को स्टार्ट में लिख लेते हैं और वेरिएबल्स को बाद में लिख देते हैं. ठीक है, ये डेट नहीं है, ये आंसर है, ये 3 में डेट नहीं है जिसको आपका एग्जाम हो सकता है. ये आपके पास आंसर है इन टर्म्स ऑफ m, a एंड y. देखिए किस अमाउंट तक आपकी वैल्यू जो है सिंप्लीफाई हो चुकी है. ओके, इन द नेक्स्ट पार्ट ही सेइंग दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.75 seconds and the value of 3y is 1.8 सेंटीमीटर्स. ठीक है, ये 3y क्या था? 3y तो एम्पलीट्यूड था 1.8 सेंटीमीटर. तो हमें पता चल गया कि जनाब x नॉट की वैल्यू 3y के इक्वल थी एंड दैट वाज इक्वल टू 1.8
8 centimeters. Determine the expression for x in terms of t, where x is in centimeters and t is in seconds. तो बच्चों, he is asking you for the general equation of its motion. उसके लिए आपके पास ओमेगा होना ज़रूरी है, उसके लिए आपके पास एम्पलीट्यूड होना ज़रूरी है. सो ओमेगा फाइंड आउट करते हैं. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी, वेयर कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड. 2 pi divided by time period is 0.75. So 2 pi divided by 0.75. 2 pi divided by 0.75. सदाकत भाई कौन सी गेम खेल रहे हैं हमारे कैमरामैन, हमारे बेस्ट फ्रेंड? जी बच्चों, द वैल्यू इज, सदाकत भाई इस वजह से गेम खेल रहे हैं क्योंकि इनकी जो रील अपलोड की है ना, वो इन्होंने उसमें अपना फिजिक्स का टेस्ट क्लियर कर लिया और इनका ए स्टार आ चुका है. ओके ओके, हम सदाकत भाई का किसी दिन डिटेल्ड इंटरव्यू डालेंगे. सदाकत भाई हेल्प्स अस अ लॉट इन ऑल एस्पेक्ट्स. इन फैक्ट ही हैंडल्स द पेज ऑफ स्लेट. अच्छा, आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ गई बच्चों 8.37 रेडियंस पर सेकेंड, राइट. अच्छा, और क्या वैल्यू चाहिए आपके पास? एम्पलीट्यूड की वैल्यू भी आ गई है विच इज एक्स नॉट. ठीक है, एम्पलीट्यूड इज 1.8 सेंटीमीटर्स. ये कैसे पता चला कि ये सेंटीमीटर्स में है? अगर हम टॉप पे जाएं तो आपके पास जो ग्राफ है इसमें x जो है कहीं बताया होगा कि ये सेंटीमीटर्स में है. इधर तो नहीं बताया हुआ, यहां पर तो x लिखा हुआ है. आगे देख लेते हैं. ओके, ये सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है. ठीक है, 1.8 के साथ ही यूनिट सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है. तो आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट नहीं करना बिकॉज वो कह रहा है वेयर एक्स इज इन सेंटीमीटर्स एंड टाइम इज इन seconds. The general equation of motion is x equals x naught sin omega t. ठीक है, आपने आंसर देना है in terms of t. ठीक है, so you have to substitute the values of x naught and omega. You will write x equals x naught which is बच्चों 1.8 sin omega t. ठीक है, omega is 8.37 और t as it is आ जाएगा. So x is equal to 1.8 साइन ऑफ 8.37 t. ठीक है, याद रहे कि जब भी वो आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहा है यू हैव टू गिव द इक्वेशन. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन में किसी भी वैल्यू ऑफ टाइम के ऊपर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो. आपको सिर्फ t की जगह सिर्फ कोई टाइम सब्स्टिट्यूट करना है जिस टाइम पर आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो, या आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट बता देगी, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन हमने बड़ा डिटेल में किया है. ये चैप्टर बड़े आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ लो एक बार. ठीक है, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. वी आर देयर टू हेल्प यू बच्चों. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5 और दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. बच्चों सबसे पहली बात तो ये कि पोटेंशियल वोल्टेज को कहते हैं. वोल्टेज नेगेटिव भी होती है, वोल्टेज पॉजिटिव भी होती है. वी डिफाइन इट एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज वर्क डन टू ब्रिंग unit positive charge from infinity to that point. कौन सा पॉइंट बच्चों? वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है. याद रहे कि जनरल रूल ये है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल, जिसको आप वोल्टेज भी कहते हो, नेगेटिव प्लेट की वोल्टेज, नेगेटिव पॉइंट की वोल्टेज भी नेगेटिव होगी. टू आइसोलेटेड चार्जेस, charged metal spheres x and y are near to each other in vacuum. The centers of the sphere are
1.2 meters apart. बच्चों याद रखना, जब भी आपने फोर्स बिटवीन चार्जेस फाइंड करनी होती है, यू टेक द डिस्टेंसेस राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज सेंटर ऑफ चार्ज, जिसको आप पॉइंट चार्ज भी कहते हो. पॉइंट P is on the line joining the centers of the spheres x and y. ठीक है, ये एक पॉइंट है रैंडमली जो कि इनके सेंटर्स के अलॉन्ग लाई कर है, एंड इट इज at a variable distance x from the center. Figure 5.2 shows the variation with x of the total electric potential due to two spheres. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि दोनों के पोटेंशियल्स पॉजिटिव हैं. इसका मतलब है बोथ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. बोथ स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज. एक और बात हमें यहाँ से पता चल रही है कि as you know that within the charge, inside the isolated charge metal sphere potential is constant. तो यहाँ से आपके पास इनके रेडियाई भी आ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले का रेडियस कितना है, 0.3 सेंटीमीटर्स, और सेकंड वाले का रेडियस कितना है, यहाँ से देख लेते हैं. सॉरी, मीटर्स में आंसर. तो ये वाला जो रेडियस आ रहा है ये आपके पास आ रहा है 0.1 मीटर्स. आपके पास रेडियस की इंफॉर्मेशन आ गई है. ठीक है, आपके पास इनके चार्जेस की इंफॉर्मेशन आ गई है. नेक्स्ट पार्ट देखें. स्टेट 3 कंक्लूजन्स दैट may be drawn about the spheres from figure 5.2. The conclusion may be क्वालिटेटिव का मतलब ये है कि कंपैरिजन दे दें दोनों का, एंड क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ बता दें. फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि आप कह सकते हो कि जो फर्स्ट स्फीयर है वो स्फीयर एक्स है या चार्ज एक्स है, और जो सेकंड वाला है वो है चार्ज पी, चार्ज वाई. सो आप यहाँ से बता सकते हो कि फर्स्ट वाले का पोटेंशियल जो है वो लेसर है, और जो सेकंड वाला है उसका पोटेंशियल ग्रेटर है. ये आपने क्वालिटेटिव बता दिए, और आप पोटेंशियल को क्वांटिटेटिवली नहीं बता सकते बिकॉज इनकी वैल्यूज मेंशन्ड नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. आप इसको अगर आप देखें रेडियस को, जो स्फीयर एक्स है उसका रेडियस है बच्चों 0.3 मीटर्स ना, और जो स्फीयर वाई है उसका रेडियस है 0.1 मीटर्स. आप इसको क्वालिटेटिवली ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, द रेडियस ऑफ स्फीयर एक्स इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ स्फीयर वाई. और क्वांटिटेटिवली आप उनकी एग्जैक्ट वैल्यूज बताएंगे दैट द रेडियस ऑफ स्फीयर एक्स इज 0.3 मीटर्स. अगर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है तो बता दें कि इनसाइड द चार्ज पोटेंशियल इज कांस्टेंट एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर वाई इज 0.1 मीटर्स. तो सबसे पहले हम यही नोट किया और यही बताते हैं, और हम इसको क्वांटिटेटिवली बता रहे हैं दैट द रेडियस ऑफ स्फीयर एक्स इज 0.3 meters and the radius of sphere y is 0.1 मीटर. बच्चों कैसे कर लेते हो यार इतना लंबा पेपर 4? मुझे लगता है पहली बारी आप लोग पेपर 4 जो है ना वो अपने CIs में ही पूरा करते हो. उसके अलावा कभी प्रैक्टिस में, कभी स्कूल एग्जाम में पेपर 4 मैंने तो पूरा नहीं देखा सिवाय एक दो बच्चों के. ओके, सेकेंड डिफरेंस, दोनों का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो आप लोग लिख सकते हैं बोथ द चार्ज्ड स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज. और थर्ड आप ये दे दो कि जो पोटेंशियल है वो एक्स का ग्रेटर है और वाई का कम है. नहीं, एक्स का पोटेंशियल कम है
और y का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो आप ये दे दें, पोटेंशियल ऑफ x इज लेस देन the potential on y. Next part देखिए, a proton is held at rest on the line joining the centers of the sphere in B at position 0.6 meters. The proton is released. Describe without calculation subsequent motion of proton. जी बच्चों, आपके पास 0.6 मीटर वाला पॉइंट कहाँ पर है? 0.6 मीटर वाला पॉइंट यहाँ पर है। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है? यहाँ पर पोटेंशियल, नंबर वन बात ये तो है कि मिनिमम है, एग्रीड, डॉट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, पोटेंशियल मिनिमम है, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होना। आप यहाँ पर देखें कि दो स्फीयर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। बच्चों, पोटेंशियल के ग्राफ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। फॉर दैट आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, और ये टेंजेंट जो है जनाब, ये एक एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट 0 है, जिस वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कितनी है? 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0 है ना, तो फोर्स भी 0 होगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स इज इक्वल टू EQ। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 0, तो फोर्स भी 0, आपके मार्क्स भी 0। नहीं, इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर आप अपनी हार्ड एफर्ट पुट इन करेंगे। सो आपने बताना है जनाब, क्योंकि आपने इसको डिस्क्राइब करना है, तो आप लिखेंगे डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन विदाउट कैलकुलेशन। तो आपने लिखना है एट x इज इक्वल टू 0.6, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0 as potential gradient at this point is 0. Potential gradient at 0.6 meters is 0. So force is also 0, because force is proportional to electric field strength. According to which formula? According to this formula, force equals EQ. So आप लिखेंगे जनाब, proton will remain at rest. इसके मोशन में कोई सब्सिक्वेंट चेंज नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, हमने आधा पेपर कर लिया है, बिकॉज आई थिंक दैट वी आर हाफ वे थ्रू, बिकॉज दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वी आर लेफ्ट विद हाफ ऑफ द पेपर। आप इस वीडियो से पहले वो हाफ पेपर खुद अटेम्प्ट करें। इसी वीडियो के सब्सिक्वेंट पार्ट में आई विल अपलोड द नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस पेपर। Until then, best of luck. Allah Hafiz. Bye.